नमस्कार सर। सर आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वायरस अफेक्ट द पर्सन इफ इन्फेक्टेड विथ एग्जिस्टिंग डिसीज लाइक बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, टाइफाइड, मलेरिया पेशेंट सर? प्लीज गाइड सर. See, the patients who are having diabetes, blood pressure, heart problem, kidney problem, transplant patient or cancer patients, they are considered as a high risk group. Okay, so we have to take extra precautions, ensure that their regular medication is on, the regular norms which and precautions which needs to be taken for anybody to stay away from corona, not to catch corona, should be taken more emphatically in such patients, and you have to be very particular about hygiene and social distancing. This is a very high risk group than the group which I just enumerated, and the rate of complications, the rate of deaths, the data suggests it is much higher than compared to a person who does not have any of the above conditions. ओके डॉक्टर, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर द मेजर टू बूस्ट immunity of a person, whether from home remedies or any ayurvedic medicine you suggest? You see, can be increased or bettered by following a very healthy lifestyle. With the given limitations that we have right now, it can be done by eating correct. Your diet should be rich in protein. You should be having fresh vegetables, fresh fruits. With whatever limitations we have, you should be exercising regularly. If going out is not allowed, you can do Ayurveda, you can do yoga, okay? And there are few supplements which are recommended, like vitamin C, which necessarily need not be taken on bite as a form of tablets or syrups. You can have it naturally, like you can have lemons, all yellow fruits, you can have avla, that is very rich in vitamin C. And when you have fresh fruits and all, they are very rich source of not only water but also micronutrients. Okay, so these are the things: good diet, regular exercise, plus supplementation with all these things. They help you build the immunity. One thing is of importance: you cannot suddenly get up on one day and say, I have to build my immunity. It is a very long process, because immunity, once you develop, it stays with you till the end of your life. Effect, strength, that decreases as one ages, but immunity cannot be built overnight. So it takes a long process, a long time to develop our immunity. So these things have to be followed on a long-term basis. ओके डॉक्टर, बड़े बूढ़ों और बच्चों के लिए आप कुछ राय देना चाहते हैं, क्योंकि उनको इन्फेक्शन जो है वो जल्दी ना फैले ये चीज़, तो उनको क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने पहले पूछा था, जैसे मैंने बताया था, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम वगैरह है, ये लोग हाई रिस्क होते हैं. उसी तरीके से बच्चे और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स है, पीपल अबव 55-60 ईयर्स ऑफ एज, ये भी उस ग्रुप में आते हैं. तो जो प्रिकॉशंस वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग, नॉट गोइंग आउट, ठीक है, हाथ धोना, मास्क पहनना, और अपनी दवाइयाँ वगैरह को जो भी है वो टाइम पे लेना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें संक्रमण की जो इन्फेक्शन का रेट है वो भी हायर रहता है बच्चों में, इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई रहती है, और सीनियर सिटीजन्स या बुजुर्गों में इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ एज उनकी इम्यूनिटी कम होती जा रही होती है. ओके, तो इसलिए इनके लिए ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू डॉक्टर. डॉक्टर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, व्हाट आर द मेजर टू बूस्ट इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन, वेदर फ्रॉम होम रेमेडीज और आयुर्वेदिक मेडिसिन? I just told you that that is over, तो उसी को कर लेंगे. Okay, doctor, how long will the effect of virus as per your opinion? Difficult to say as of now. जैसे कि अभी आपने जैसे देखा, वेरियस बॉडीज है, आप it is reported in media that it has been there for almost from December. It has been there 2019
ऑलरेडी ऑलमोस्ट 6 months ओवर। ओके, तो देखिए इसमें आपको एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि वायरस है, इससे बॉडी को और ह्यूमन रेस को इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी, और धीरे 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 इसका जो इन्फेक्शन रेट है, इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ केसेस कम होते जाएंगे। जैसे कि अभी तो इंडिया में तो अभी ये पीक पे नहीं पहुंचा है, बाकी कंट्रीज़ में जहाँ पे ये पीक कर चुका है, वहाँ पे अब केसेस वगैरह कम हो रहे हैं, लॉकडाउन्स वगैरह ख़त्म हो रहे हैं। सो इसका टाइम को रखना, एक टाइम फ्रेम देना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जिस हिसाब से हम इसका प्रोग्रेशन देख रहे हैं, इसका स्प्रेड देख रहे हैं, फर्टिलिटी देख रहे हैं, इसमें कुछ टाइम अभी लगेगा। बचाव के लिए वैक्सीन्स का काम वगैरह चल रहा है, मेडिसिन के ऊपर रिसर्च चल रही है। टाइम फ्रेम रखना कि ये 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वी हैव टू सी वेयर इट टेक्स अस फ्रॉम हियर। ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर एक लास्ट क्वेश्चन था कि डॉक्टर प्लीज गाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू इन पैंडेमिक सिचुएशन टू आवर कम्युनिटी सर। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, बहुत सिंपल गाइडलाइंस वगैरह है। आपको रोज़ न्यूज़पेपर वगैरह से, जो भी आजकल ई न्यूज़पेपर वगैरह मोबाइल पे आते हैं, वेरियस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से टीवी वगैरह पे एडवर्टाइज किया जा रहा है, टाइम टाइम पे आपको अपडेट किया जा रहा है। इसमें जो कोरोना है, ये फैलने का जो इसका तरीका है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, और छूने से बढ़ता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम अपने से दूसरे व्यक्ति के बीच में 1 मीटर का गैप रखें। चेहरे के ऊपर कपड़ा, ये मास्क या रुमाल वगैरह बांध सकते हैं। मास्क बेटर है क्योंकि उससे आपका संक्रमण किसी और को नहीं आ सकता और आप भी सेफ हैं। नंबर 3, हाइजीन, हाथ धोना, कपड़े वगैरह चेंज करना, कहीं भी बाहर गए हैं तो आने से पहले पैर वगैरह धो करके घर में एंटर किया जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो पर्सनल प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं, ये बहुत सारा आपको बचाती है। आप जैसे कुछ लोग जाकर के इस समय सोशल वर्क, जिनके पास रहने को जगह नहीं है, खाना वगैरह को नहीं है, उनकी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा काम है। लेकिन उसमें भी आपको अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। मास्क पहन के रहें, ठीक है, अपने हाथों में ग्लव्स रखें, इफ़ पॉसिबल शू कवर भी यूज़ करें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा करीब लोगों के ना जाए, 1 मीटर की दूरी बना के रखें, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं करने से आप काफ़ी हद तक इनसे बच के रह सकते हैं। आवश्यकता ना पड़े तो घरों से बाहर मत निकलिए, क्योंकि बाहर से कोई सामान आ रहा है तो उसके अच्छे से उसको सैनिटाइज करके फिर घर के अंदर लीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये प्रैक्टिस करने से कोरोना संक्रमण से या इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।